Students, today we are going to discuss law of demand. Okay, law of demand is important law of demand chapter. Therefore, it is important for you to go through the line by line of this law. And question from this law is often asked in the examination. However, the core concept of the demand law of demand is known to us. Okay, because we already discussed the relationship between price and demand. So that is what we are going to discuss today. That is law of demand. Law of demand states that other things being equal, there is a negative relation between demand for a commodity and its price. Okay. Now, law of demand states that other things being equal means the things which are other, which means other factors are being equal, are being constant. For example, change in income, for example, price of related goods, price of substitute goods, taste and preference, all these things being equal means all these things being constant. There is a negative relation between demand for a commodity and its price. And other things being constant, the relationship between price and demand is inverse, that is negative. It means when price increases, demand decreases, and when price decreases, demand increases. In other words, when price of the commodity increases, demand for it falls, and when price of the commodity decreases, demand for it rises, other factors remaining the same. So this is the law of demand that you need to write. Whenever a question will be asked in the examination that what is law of demand, then you will write this, either this or this. And you will explain the law of demand, you will discuss the law of demand stepwise. Okay, you will follow all the procedures of the law of demand. For example, first thing that you will be needed is to give the definition of the law of demand. So this is the definition of the law of demand that I discuss now. So I hope you have understood that core concept of law of demand is the core objective of defining the law of demand is to show the relationship between price and demand. And it says that when price increases, demand decreases, and when price decreases, demand increases, other things remaining the constant, other things remaining the same. And what are the other things? अदर थिंग्स का यह मतलब हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, all these things will be constants. So there will be no changes in this factor. Now let us see the assumptions. The assumptions that we saw in the definitions that we are going to discuss. First one is income of the consumer remains the same. इनकम चेंज नहीं होगा, ये एजम्पशंस किया गया. तो डिफिनेशन के बाद आपको एजम्पशंस भी लिखना है जब भी लॉ क्वेश्चन आएगा लॉ से. तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होगा. प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी प्राइस चेंज नहीं होगा. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन द सेम, जो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, और कंज्यूमर जो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया है कि प्राइस जो है बढ़ने वाला है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो हम लोग देख चुके हैं कि जब प्राइस बढ़ने वाला रहेगा ऐसा लगता है कि नहीं फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा और भी बढ़ेगा, तो डिमांड जो इंक्रीज हो जाता है, आदमी जो जमा करके घर में रखने लगता है, चाहे प्राइस इंक्रीज हो भी रहा है, प्राइस बढ़ भी रहा है, फिर भी डिमांड इंक्रीज हो जाता है. तो ये सब कुछ आपको जो एजम्पशंस है जो आपको याद रखना है. यदि ये एजम्पशंस आपको फेल कर जाएगा तो इसका मतलब लॉ जो है आपको रॉन्ग हो जाएगा, लॉ काम नहीं करेगा. तो लॉ इसी एजम्पशंस पे बेस्ड रहता है, इसीलिए एजम्पशंस दिया जाता है कि ये एजम्पशंस यदि फॉलो किया जाएगा तभी जाके लॉ का स्टेटमेंट जो है आपको सही होगा लॉ ऑफ डिमांड. यदि ये इसमें से एक भी यदि आपको कुछ आपको ये हो जाएगा, एजम्पशन जो है आपको फॉलो नहीं किया जाएगा, ये फेल कर जाएगा, तो लॉ ऑफ डिमांड जो आपको फेल कर जाएगा, वो जो आपको सही डिफाइन नहीं कर पाएगा. तो ये था डिफिनेशन ऑफ लॉ. हम लॉ का स्टेटमेंट देखे, एजम्पशन देखे. अब नेक्स्ट वन डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व. अब इस लॉ को हम लोग जो है एक टेबल, छोटा सा टेबल और एक कर्व के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं. विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड.
ना यहाँ पे एक डिमांड शेड्यूल यहाँ पे जो है हम यहाँ पे दिखाए हैं, एक टेबल है। प्राइस जो पहला कॉलम हो गया, प्राइस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, पहले सॉरी डिक्रीज हो रहा है, पहले 5 था, फिर 4 था, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह से ये जो है आपको नीचे जा रहा है, प्राइस जो है घटते जा रहा है, प्राइस जो है आपको डिक्रीज होते जा रहा है। और उसके अपोजिट में आप देखिए क्वांटिटी क्या रहा है, क्वांटिटी जो है इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी आपको बढ़ रहा है। तो जब प्राइस आपका 5 था, जब प्राइस 5 था तो डिमांड कितना था 1। जब प्राइस 4 हुआ तो डिमांड कितना हो गया 2। जब प्राइस 3 हुआ तो डिमांड कितना हो गया 3। प्राइस जब 2 हुआ तो डिमांड 4। प्राइस जब 1 हुआ तो डिमांड 5 हो गया। यानी कि प्राइस घट रहा है और क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ रहा है। तो ये आपको इन्वर्स रिलेशनशिप जो है बतलाया जा रहा है। नाउ वी कैन सी द डिमांड कर्व। नाउ दिस इज द डिमांड कर्व, ठीक है। y axis showing the price of the commodity and x axis quantity demanded in units। तो आप जब इसको उसी टेबल को जब आप जो है इस तरह से पॉइंट वाइज आप मिलाएंगे डायग्राम में, कर्व में, तो आपका ये जो है स्लोप बन जाएगा, डिमांड कर्व आपका बन जाएगा। यहाँ पे देखिए जब प्राइस 5 था तो डिमांड 1 था, यहाँ पे जब प्राइस 4 था डिमांड 2 था, प्राइस जब 3 हुआ तो डिमांड 3 हो गया, प्राइस जब 2 हुआ तो डिमांड 4 हुआ, प्राइस जब 1 हुआ तो डिमांड आपका 5 हो गया। जब ये सभी पॉइंट्स को मिलाया गया तो आपको एक कर्व मिला, और ये इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कर्व को बोलते हैं डिमांड कर्व, DEMAND, डिमांड कर्व। तो ये हो गया डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व कौन सा कर्व हुआ, डिमांड कर्व जो है आपको क्वांटिटी डिमांड का जो है आपको कर्व बतलाता है। इट मीन्स इसमें प्राइस का चेंज होने से जो क्वांटिटी चेंजेज होता है, क्वांटिटी का डिमांड जो चेंजेज होता है उसका जो है ये रिलेशनशिप दिखाता है आपको डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व का जो है आपको ये याद रखना है कि इट स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवार्ड्स, मीन्स इट स्लोप्स डाउनवार्ड्स, ये नीचे की तरफ जो है आपको स्लोप इसका है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लोग इस साइड से इस साइड जाएंगे देखेंगे कर्व आपको नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको था डिमांड कर्व। तो लॉ ऑफ डिमांड को जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है कि आपको पहले लॉ का स्टेटमेंट देना है, फिर एजम्पशंस देना है, फिर आपको जो है डिमांड शेड्यूल दिखाना है टेबल, फिर यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना है। In the given diagram, we observe that demand curve DD slopes downwards from left to right, indicating an inverse relationship between price and quantity demanded. Now, जब भी आपको इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स या टू वेरिएबल्स के बीच में दिखाना रहता है, यानी कि दो वेरिएबल्स है, दोनों के बीच में जो अपोजिट रिलेशनशिप है, तो उसका जो कर्व होता है, उसका जो डायग्राम होता है वो आपको इसी तरह का होता है। उसका डायग्राम आपको स्लोप होता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि डिमांड कर्व के अलावा जो दूसरा चीज़ भी जो आप पढ़ेंगे, या फिर जो फैक्टर्स आप लोग पढ़े थे, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सिडी, ये सब जो आप पढ़े थे, तो उस समय देखे थे कि आपको बहुत सारे केस में जो है आपको जो डिमांड कर्व था वो आपको इसी तरह का था। तो ये कब होता है, जब आपको इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और कब जो है इसका आपको जब दोनों आपको एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, एक ही डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, यानी कि यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। जब ऐसा पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा दो वेरिएबल्स के बीच में, तो उसका जो स्लोप है इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि मूविंग अपवार्ड, नॉट डाउनवार्ड्स बट मूविंग अपवार्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसको आप देखेंगे। ना एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, ना इस लॉ का कुछ एक्सेप्शंस भी है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है गिफन गुड्स एक्सेप्शन है, यानी कि गिफन गुड्स के ऊपर में जो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। गिफन गुड्स क्या होता है उसको हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं अभी डिटेल्स में। सेकेंड, स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ऑस्टिनेशन, कभी कभी स्टेटस सिंबल भी होता है गुड्स, यानी कि महंगा चीज़ जो है वो जो है एक स्टेटस बताता है कि जो जितना महंगा जो है यूज करता है तो दिखाता है कि नहीं हम जो है धनी हैं, हम जो है बहुत ही पावरफुल हैं। कोई महंगा कार खरीदता है दिखाने के लिए, महंगा ड्रेस पहनता है दिखाने के लिए, तो वहाँ पे प्राइस जो है मायने नहीं रखता, प्राइस बढ़ेगा अभी तो और उसको खरीदेगा दिखाने के लिए। दूसरा है फियर ऑफ शॉर्टेज, कभी कभी फियर ऑफ शॉर्टेज होता है, कहीं शॉर्ट ना कर जाए,
तो शॉर्ट ना कर जाए, तो आपको प्राइस महंगा ज़्यादा भी बढ़ता भी है, फिर भी जो है आदमी उसको खरीदता है। इग्नोरेंस, बहुत बार कंज्यूमर जो इग्नोर कर देता है प्राइस को। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर जिसका इग्नोरेंस रहता है, उसको मतलब नहीं है प्राइस जो है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको ख़रीदना है तो ख़रीदना है बस। तो जो है इग्नोरेंस की तरह के चलते भी वो जो है आपको खरीद लेता है, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी खरीद लेता है। चेंज इन वेदर चेंज हो, जैसे कि मान लो कि अभी जो है विंटर यदि आएगा, तो विंटर में जो है स्वेटर्स का, वुलन क्लॉथ्स का यदि प्राइस बढ़ता भी है, फिर भी आदमी उसको खरीदता है। उसी तरह से रेनी सीजन में अम्ब्रेला आदमी खरीदता है। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, बहुत कुछ ऐसे भी है जो नेसेसरी है लाइफ में, उसका नेसेसिटीज होता है, यानी कि उसके बिना जो हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो उसका यदि प्राइस बढ़ता भी है, फिर भी हम लोग उसको जो है हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इससे आपको राइस हो गया, ब्रेड हो गया, तो रोटी हो गया, तो ये सब का प्राइस बढ़ने से भी इसका डिमांड पे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। फैशन रिलेटेड गुड्स, कोई भी गुड्स यदि फैशन में आ गया है, यानी कि उसका यदि ट्रेंड्स चला है, उसको आदमी ज़्यादा आजकल जो मतलब यानी पसंद कर रहा है उसको फैशन में, तो उसका प्राइस बढ़ने से भी आदमी जो है उसको खरीदता है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन है जिसको आपको लॉ ऑफ डिमांड में लिखना है। चलिए हम लोग गिफ्ट एंड गुड्स देखते हैं। पहला जो देखे थे गिफ्ट एंड गुड्स केस में जो है आपको लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। गिफ्ट एंड गुड्स क्या है इसका देखिए। इन द अर्ली 19th सेंचुरी के बाद सर रॉबर्ट गिफेन, एक इकोनॉमिस्ट था, ऑब्जर्व दैट व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज, ये क्या ऑब्जर्व किया, जब रोटी का जो है प्राइस बढ़ गया, ब्रेड का जो है प्राइस बढ़ गया, देन द लो पेड ब्रिटिश वेज अर्नर्स ब्राउट मोर ऑफ ब्रेड एंड नॉट लेस। ऐसा हुआ कि जब आपको ब्रेड का प्राइस जब बढ़ गया ब्रिटिश में, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, तो जो डेली वेज अर्नर है, जो लेबर है, जो जिसको बहुत ही कम पैसा मिलता है डेली बेसिस पे जो काम करता है, तो वो क्या हुआ, ऐसा ट्रेंड देखा गया कि ब्रेड का प्राइस बढ़ने से और ज़्यादा ही ब्रेड खरीदने लगा। यानी कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होना चाहिए, तो ऐसा देखा गया। गिफ्ट एंड गुड्स के केस में क्या होता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाता है, यानी कि ब्रेड का यदि प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड भी बढ़ गया। ऐसा क्यों? दीज वेज अर्नर्स यूज टू लिव मेनली ऑन द डाइट ऑफ ब्रेड। ब्रेड जो है इसका मेन आपको डाइट था, ठीक है। With rise in its price, they were forced to cut down their consumption of meat and other expensive food items. तो चूँकि ब्रेड जो है इसका मेन आपको डाइट था, डेली का जो आपको भोजन था, तो जब क्या हुआ, प्राइस जब बढ़ गया आपको इसका, तो दे वर फोर्स टू कट डाउन देयर कंजम्पशन ऑफ मीट। तो उसको जो महंगा चीज़ था उसका कंजम्पशन को रोकना पड़ा, यानी कि जो ब्रेड के साथ जो मीट खाता था, मीट या मछली जो खाता था, तो उस पर जो है वो कम खर्च करने लगा, क्योंकि जो है ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, तो अब जो है ये कंज्यूम करना मुश्किल था कि ब्रेड भी खाएगा और मीट भी खाएगा। तो क्या क्या वो मीट पे जो है खर्चा करना बंद कर दिया, और जो मीट पे जो खर्चा करना बंद किया, जो मीट पे जो खर्च करता था, उसके बदले में अब वो ब्रेड ही खरीदने लगा उसका पूर्ति करने के लिए। सो टू मेंटेन देयर इनटेक ऑफ फूड दे बाउट मोर ब्रेड एट हायर प्राइसेस। और क्या क्या वो मीट को छोड़ करके ब्रेड ही खरीदने, और ब्रेड जो है ज़्यादा खरीदने लगा, ताकि केवल ब्रेड ही खाएंगे, मीट चूँकि महंगा हो गया तो उसको नहीं खाएंगे। तो ब्रेड का प्राइस बढ़ने के साथ जो है उसका डिमांड भी बढ़ गया। दिस फिनोमेनन वाज रेफर टू एज गिफेंस पैराडॉक्स एंड इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको ये हो गया कि दिस फिनोमेनन रेफर टू गिफेन पैराडॉक्स, इसको हम लोग बोलते हैं गिफेन पैराडॉक्स। गिफेन पैराडॉक्स जो आपको इसको बोला जाता है, और इस गुड्स को गिफेन गुड्स भी बोला जाता है। तो ये एक आपको केस है गिफेन गुड्स का, ठीक है। गिफेन गुड्स कोई एक्चुअली गुड्स होता नहीं है, ये एक केस होता है, एक सिचुएशन होता है, जो अभी हम लोग देखे वे लो वेज अर्नर्स के साथ में ऐसा ऑब्जर्व किया गया। So this is all about today's class. We discussed law of demand and we will discuss more of this in coming classes. Thank you.